नंबर 12 स्टार्ट हुआ है, मैम ने वो कट करवा के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया। हीट हीट स्टार्ट करवाया बेटा? यस मैम। ओके फाइन। कौन सा कट कर दिया? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट ना, तो वैसे भी हम रिप्रोडक्शन प्लांट नहीं लेंगे, हम फिजिकल केमिकल चेंजेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट विल टेक बेटा लिटिल बिट टाइम, ओके? वो समझने के लिए इट विल टेक टाइम, तो अभी नहीं ले रहे हो, फिजिकल केमिकल चेंजेस से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइन? चलो हाँ। यस बेटा। मैम मेरी स्कूल में ना वो टर्मरिक पेपर का टेस्ट भी करवाया था। कौन सा? टर्मरिक पेपर। हाँ, जो हमने बनाए थे टर्मरिक पेपर। यस राइट। मैम यस। in our school, ma'am, they gave us activity about temperature. You are not audible, Daksh. Ma'am, in our class, they had given activity on temperature. We have to make a table on temperature. On Temperature of 7 temperature. Okay. That's easy for you, right, beta? If you want any help, you can just ask me, right? Yes, ma'am, easy. Okay, fine. हाँ जी, ready, beta? I'm putting your spotlight and you are already unmuted. Yes, ma'am. Your project, beta. मैम मैं स्क्रीन शेयर करूँ या फिर प्रोजेक्ट? खा लिया हो आपने? मैम आपने लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था? मैंने अटेंड नहीं किया था मैम। लास्ट टाइम सैटरडे को टेक्सचुअल एक्सरसाइज की थी एंड इस बार हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भी नहीं कर सकते, आप कैमरा वहीं पे फोकस करो, ठीक है? प्रोजेक्ट के ऊपर। मैम कौन सा मेरा केमिकल और फिजिकल चेंज वाला? अच्छा, कौन बनी थे क्या? हाँ मैम। You were not there, right? हाँ, आपका फेवरेट चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है? फाइनली, बट आई कैन सी यू। हाँ चलो जी, आर रेडी? यस मैम। यस बेटा। मैम अब ठीक है? अब ठीक है, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। Yes beta, you are on spotlight. Okay, you have prepared that. This is of, I thought that you have prepared model. Okay. No ma'am, I have project. Yes, please explain beta. Ma'am, there is two types of water. This is first dirty water and this is clean water. I have written about dirty water here and clean water here. Then? Yes ma'am. Then beta? Yes ma'am. After that what beta? You need to explain, no? What you are going to do with dirty and clean water? Yes ma'am, so I have written the uses. First we will go through the clean water. So clean water uses is provide nourishment, prevent disease and help in getting rid of toxins and all the disease. Then after I haven't write uses of dirty water because there is no use of dirty water. I have written a paragraph. Who said that there is no usage of dirty water? When we are going to study the chapter, I will show you exactly how we are going to use that dirty water. Fine? Okay. Fine? Ma'am, to clean something. Chapter खत्म हो गया है क्या? Just a second. So you must be aware about it, beta. What is that reason? How we can utilize it? And project should be like, beta, if you are seeing science project, no, always it will be a model preparation. Okay, yes, this is a chart paper presentation. Yes. Okay, yes, Steve, what's your question? Great work, but Jia, great work, beta. Thank you. I was saying use of dirty water. Yes, please. Ma'am, to clean something. Dirty water to clean something? Usages of dirty water, beta. Not usages of cleansing that water. अच्छा, डर्टी वाटर को हम कैसे आगे कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं? मैम, यस मैम, वी कैन प्योरीफाई इट। प्योरीफाई यानी कैसा? प्योरीफाइड के वर्ड से आप क्या समझते हैं बेटा? प्योरिफिकेशन यानी पी सकते हैं उसको? यस मैम, प्रोसेस करके। प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। And we can use it for domestic use. Domestic use. Yes ma'am, to plant. For plants water. धीरे धीरे सारे आंसर्स आ रहे हैं, चलो सही है। We are going to utilize that sewage water. उससे हम उसको सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर सेकेंड उससे हम क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा? एक टाइप की एनर्जी, वो हम उसी चैप्टर में देख लेंगे। फाइन, राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस।
Okay. Bathing animals at farm also. Yes. गंदे पानी से कैसे नहाएंगे? Yes बेटा, yes. चलो physical chemical changes से start करें. Yes. Before we start with physical and chemical changes, I'm having one question for you. Okay. What's the meaning of changes? बदलाव. अच्छा हाँ, ये तो हो गया हिंदी में, फिर आप बोलोगे गुजराती में. नहीं नहीं नहीं, साइंटिफिक टर्म में बताओ. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चेंजेस बेटा? ऑफलाइन से ऑनलाइन आ जाना है ना, पढ़ाई एकदम से चेंज हो गई. राइट. यस ध्वनित बोलो बोलो बेटा. मैम मैंने सबसे चेंजेस इज मैटर में चेंजेस बेटा. मैम वो अपने मॉलिक्यूल्स चेंज करती है मैम. कौन मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं बेटा? मैम लाइक water changes into ice when we put into freezer. Correct, correct. Very good example, right? Now, changes means what? We are going to study changes in terms of science, huh? Not any other changes. But yes, we can involve anything into a science subject. Right? First of all, we are going to divide our changes into physics, chemistry. Actually, not physics, chemistry, but we can say physical and chemical changes. Right? अब जो example ध्वनि ने बताया, that is the example of physical change. कोई change हो रहा है, suppose. आप जहाँ पे बैठे हो वहां से खड़े होके कोई एक जगह पे चले गए दूसरी जगह पे. राइट. तो वो चेंज हुआ. किस चीज का चेंज हुआ? आपकी पोजीशन में चेंज हुआ. आपने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आवाज में चेंज हो गया. राइट. आपने अगर स्क्रीन में कोई फिल्टर डाल दिया तो वो विजुअल में चेंज हो गया. राइट. चेंजेस होते रहते हैं हमारे अराउंड. ओके. इट कैन बी ऑफ एनी टाइप. अब उसमें से साइंस में हम दो टाइप्स के पढ़ने वाले चेंजेस. ओके. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके. नाउ व्हाट इज the meaning of physics and chemistry? We already discussed. Physical change means the form, shape and size will change or the state will change. Just like one example, water. Only one example will take to understand this. Okay. If you are going to freeze the water, right now it's in a liquid state. Water is in a liquid state. If you are going to freeze it, it will get converted into solid. If you are going to melt it, it will get converted into gaseous form. So these are different three states. But at the end, whether you are going to melt it, whether you are going to freeze it, or it will remain in the original form, in all those three forms, you'll find out your ice cube, your vapor, and your water. Three of them are made up of what at the end? H2O molecules. वो पानी ही है ना? It will remain पानी. Suppose a very good example. चलो पानी वाला अगर समझ में नहीं आए तो chocolate. Okay. If you are having that chocolate, हाँ जिया बहुत सबसे ज्यादा खुश लग रही है ना? अगर चॉकलेट है बड़ी साइज की. राइट. राइट नाउ इट्स इन अ सॉलिड फॉर्म. इफ यू आर गोइंग टू मेल्ट इट, it will converted into liquid form. If you are going to freeze it once again in refrigerator, once again it will take that form of solid, है ना? So what is that? We are going to change the state. State यानी solid से liquid कर रहे हैं, liquid से फिर से solid कर रहे हैं, है ना? But still your chocolate is made up of what? That component is what बेटा? chocolate ही है ना? वो change नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि पहले चॉकलेट का था और अभी मिल्क का हो गया, कुछ और हो गया, है ना? सो दिस इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज यानी उसके शेप में, साइज में, उसी के अंदर या स्टेट में डिफरेंस आ रहा है. बट अगर समझ लो, those who are eating eggs, okay, suppose if you are having eggs and one of the vendor who is going to convert it into omelette, right? अब ऑमलेट बनने के बाद क्या फिर से वो एग्स में कन्वर्ट हो सकता है? Whatever veggies, whatever spices. No, ma'am. Ma'am, ma'am, can I say? Yes. Solar energy converted into chemical energy. Correct. So can we bring back that energy, beta? But can we bring back the solar energy? No. No, we can only convert energies, different forms of energies. We cannot create, we cannot destroy the energy. That is the law of conservation of energy. हम कभी भी energy produce नहीं कर सकते या destroy नहीं कर सकते. It will just transfer from one form to another form. Ma'am, can you take D1 into lecture, ma'am? वो मेरे को मैसेज कर. Ma'am, can you take the D1 into lecture? Okay, fine. Definitely I will. Why should I not? Okay. So we'll wait for them, huh? Changes, it's clear, beta? Changes. What's the meaning of change? And it can be of any type, right? Yes.
But we are going to Yes, learn two ma'am. types, physical changes and chemical changes. Those who are entering late, for them we have started with a physical and chemical changes. Okay, Mitwa, Rutwa and Devansh. And we have only discussed one thing, that is what's the meaning of change. Okay, we will see that every day. In day-to-day life, we are going to see so many and numbers of changes going on in our surrounding, right? So what is that? Right now, Gia is moving. Right now, music is going, someone is playing that music, or someone is just moving their cameras, or your eyelashes are just, or our heart is pumping. We can take any of that example. Your position is, you are going to change, right? Yes, Dia. Ma'am, why do we need to study this chapter? Great. Finally, someone asked me that question, and how many parts we are going to divide. Okay. Yes. Why do we need to learn this chapter? Is it so that we are not going to face any type of change? No, ma'am. है ना? Simple example. अगर आज आपने खाना खाया, तो वो किसी चीज में कन्वर्ट होने वाला है. That is one type of a major change. अगर वो change नहीं होगा, we cannot survive because it's going to get break down your food into energy, है ना? So that is the biggest change. तो सिर्फ वो change समझने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा. Great work. Yeah. Okay. What are the other changes that we can discuss, बेटा? मैम इस चैप्टर के लिए भी आपके पास वो मैम आपने पीएच में दिया था वो वाला. Yes, बेटा. मैम वो बता रहा है इस चैप्टर के लिए आपके पास सिम्युलेटर है. You are not audible. Turn by turn, both of you can. मैम मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपने पीएच में दिया था वैसा इस चैप्टर में भी है. हाँ, सारे चैप्टर्स में बेटा. If you want सारे मैम चैप्टर्स. आप फिजिकल चेंजेस में आपको करवाना मैम. ठीक है, श्योर बेटा. मैम वो मुझे ढूंढना भी आ गया. आ गया ना? हाँ. ठीक है, कैसे ढूंढा? और मैम मिल भी गया उसका. मिल गया? यस. चलो ग्रेट. मिल गया है, देन वंडरफुल. कितने मिले आपको? मैम बहुत सारे हैं. बहुत सारे मिले. देन ग्रेट. फाइन. उसमें सीजर और वो सब मूव कर सकते हैं सर. करेक्ट. मैम कैसे मेरे को सिखाओ मैम कैसे करना है. अरे कुछ भी नहीं, जो टॉपिक चाहिए मैंने सिर्फ ऐसा टाइप किया कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सिमुलेशन. वेरी गुड. ओके. ओके. मैम उसमें ये वाली एक्टिविटी भी है, आइस क्यूब और वाटर वाली. हाँ, बहुत सारे ऐसे. फाइन. Okay, चलो point पे आए. So why do we need to learn this chapter? Because so many changes are going on in our surrounding, and that we need to understand. तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ऐसे समझना है या इंग्लिश लैंग्वेज समझनी है तो पहले एबीसीडी स्टार्ट करेंगे, है ना? अगर एबीसीडी समझ गए तो हम वो लैंग्वेज पढ़ पाएंगे, राइट? इन द सेम मैनर हम उसके बेसिक जो टाइप्स है वो अगर स्टडी कर लेंगे तो you will understand what are those changes, right? So we are dividing them into mainly two parts, physical and chemical changes. अच्छा, ये चैप्टर कितने में डिवाइड होगा, कौन से पोर्शन में? That I will tell you once we'll complete this introduction, right? So physical and chemical changes. Physical means it's going to change in form of what, beta? State, shape, size. Okay? पूरी उसकी composition change नहीं हो जाएगी. We were discussing for chemical changes. Suppose if you are having eggs, you are having spices and some veggies. Okay, if you are going to prepare the dish omelette, right? So we cannot bring back the eggs once again, or once we prepared that ऑमलेट, है ना? उससे हम वापस फिर से एग्स नहीं ला सकते, स्पाइसेस वापस नहीं ला सकते. और सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग मैगी, तो क्या रॉ मटेरियल मैगी का या फिर मसाला वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, है ना? इट विल चेंज व्हाटएवर द एंड प्रोडक्ट इज. सब्जी बनाने के बाद सपोज पालक पनीर, है ना? व्हाट विल हैपन वंस यू आर डन विद दैट पालक पनीर, you cannot bring back that raw material of paneer and palak and all the other spices, right? Now it's your new composition. New composition yani at the end of the process you are having palak paneer, right? That is chemical change. Chemical change yani wahan pe at the end of that process one new substance will form. Okay, one new substance will form means it's not the common like in case of water and in case of chocolate. No new substance will form, not a single, right? wahan pe pani se hi bana hai aapka ice cube bhi aur vapor bhi. और अगर यहाँ पे हम चॉकलेट ले ले तो चॉकलेट एट दी एंड अगर फ्रीज कर रहे हो और मेल्ट कर रहे हो फिर भी वो चॉकलेट से ही बनी है, दोनों फॉर्म, ठीक है? बट अगर हम यहाँ पे पालक पनीर ले ले, राइट, फर्दर वी कैन नॉट ब्रिंग बैक ऑल द स्पाइसेस और द रॉ मटेरियल्स दैट वी हैव यूज्ड और द इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट प्रिपरेशन ऑफ पालक पनीर.
Is it clear? So what is the definition between what is the main definition, or we can differentiate in between physical and chemical change? So in chemical change, if new substance will form at the end of that process, chemical reaction, that is known as chemical change. कितने भी एग्जांपल्स क्यों ना आ जाए, आपको ध्यान में यही एक पॉइंट रखना है. Yes, there are few characteristics we can identify whether it's physical or chemical change, but the main part is what beta, at the end new chemical substance should form. Is it clear? Yes. No. चलो फिजिकल केमिकल चेंज में इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll start with physical and chemical changes first. Yes, ma'am. Ma'am, can I read? Just a second बेटा, नहीं पता नहीं है हमसे. Okay, while I'm uploading this, just wait for a while beta. It may be possible that initially it's not going to look very clear. Fine. Okay, so first of all, the difference between physical and chemical changes. So what are the characteristics? They change from one form to another form without changing in the chemical identity. यानी अगर chemical composition उसकी change नहीं हो रही है, अब वो point पे आएंगे what is it chemical changes और what is it. आपने तो मैम बताया कि कोई नया chemical substance बन रहा है, तो वो कैसे बनेगा? It's something like some of the bonds will break there and some of the new bonds will be formed. अब ये bonds क्या है? Okay, that we will learn in higher standard, but right now we need to understand. Suppose eggs are made up of protein. Can we say that? Or palak paneer. Palak is consisting of different types of minerals. Paneer is consisting of calcium. अब ये जो different chemical components है, जब आप उसको कुक करते हो या फिर कोई ऐसी प्रोसेस से उसको पास करते हो जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना. केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके जो केमिकल सब्सटेंस यानी जिससे वो बने हैं वो टूट के फिर से कोई नया सब्सटेंस बनने वाला है. ठीक है. सपोज इफ यू आर हैविंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर ये ज्वाइन होके H2O बनाएंगे तो वहां पे पानी बनेगा. पहले वो हाइड्रोजन सेपरेट था, ऑक्सीजन अलग था. कार्बन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, राइट? एटलीस्ट यू नो दैट, राइट? सो कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है. अगर ये कंबाइन होके कुछ बनाता है तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? CO2. इज इट क्लियर? वैसे ही यानी यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसलिए नया सब्सटेंस फॉर्म होगा. सो व्हाट इज दैट बेटा? हियर इन फिजिकल चेंजेस देयर विल बी नो चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी. कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा केमिकल चेंज में. सेकेंड, स्टिल इट विल रिमेन सेम सब्सटेंस. अगर पानी है, चॉकलेट है, वो वही का वही रहेगा, बट यहाँ पे नया सब्सटेंस बनेगा. इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट डज इट मीन? Is going to affect the physical property only. Here is going to affect physical and chemical property. यानी उसका शेप, कलर, साइज, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी. पालक जो थी और पनीर जो था वो पहले कैसे दिख रही थी और मैगी जो थी वो पहले कैसे दिख रही थी, और आफ्टर कुकिंग प्रोसेस इज गोइंग टू लुक एग्जैक्टली डिफरेंट. ओके, इट्स नॉट सेम. जनरली इट्स इजी टू रिवर्स. नाउ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, है ना? रिवर्स मीन्स व्हाट? उसको हम वापस से उसी फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. But here in case of chemical change, we cannot. Okay, not easy to reverse without additional chemical reaction. यानी एक और chemical reaction करना पड़ेगा अगर उसको वापस, but in all the cases it's not possible. Okay, then we can bring back the original form. These are the differences. Now we need to understand, before understanding this physical and chemical change, what are three states? Three states means what? In 6th standard you might have already studied, right? But three states means solid, liquid and gases. What are the molecular arrangement? Molecules means what? While we are taking this word chemical, we are going to use this word molecular term, chemical substances, everything. Okay, solids means molecules are tightly packed. अगर एक रूम में गलती से 50 लोगों को फिट कर दिया और जबकि उसकी कैपेसिटी थी कितनी? समझ लो कि 20 की, है ना? तो no one can go inside and no one can come outside, है ना? ये कंडीशन होगी. Second, liquid. It's something like liquid is you'll find out some space between the molecules, है ना? तो
थोड़ी सी जगह है, समझ लो कि ट्रेन है जो थोड़ी फुल हो चुकी है ऑलरेडी, ट्रेन कैसे जाती है पता है ना, जनरल कोचेस, बट फिर भी थोड़ा मूव तो हो सकते हैं। एंड गैसेस मॉलिक्यूल यानी जब रिसेस के टाइम में पता चला कि सारे टीचर्स मीटिंग में है और कोई मॉनिटर जैसा नहीं है और जो कंडीशन होती है आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज नोन एज गैसेस मॉलिक्यूल्स, है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस एग्जांपल बिफोर, राइट। तो वो गैसेस मॉलिक्यूल्स हो गए। देयर विल बी नो स्पेस, इंटरस्पेस, कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं है वहां पे, है ना। देयर विल बी नो फिक्स्ड शेप। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और दो है जो हम अभी 7th में स्टडी नहीं करेंगे, ओके। वो जो फॉर्म है दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस 3 फॉर्म, बट अभी के लिए हमारे यूनिवर्स में सारी चीजों को इन 3 स्टेट में, फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेदर इट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। अच्छा, अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स? केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, लाइक इन केस ऑफ एग्स टू ऑमलेट। गैस विल रिलीज, दिस आर व्हाट इज दैट क्वेश्चन बेटा? मैम आप जो बोल रहे हो हमें पता कैसे चल रहा है, चलेगा कि वहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस अगर विजुअली नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। So what is that? What are those signs and symptoms by using which we can decide whether this is physical change or chemical change? Okay? नॉर्मल सा एग्जांपल, अगर एग्स में से ऑमलेट, वो तो देख लिया। गैस रिलीज, इनो को जब डिसॉल्व करते हैं पानी में तो वहां पे बबल्स फॉर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे गैस रिलीज हो रहा है। सो व्हाट इज दैट? कैन वी से इट्स अ केमिकल सब्सटेंस और केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज होगा, पहले वाटर था और आपका इनो अलग था, अब वाटर के अंदर आपने क्या मिक्स कर दिया? हेलो, ऑल ऑफ यू आर देयर, नो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पार्ट, लाइट रिलीज। अगर आप मैस्टिक को विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, इफ यू आर गोइंग टू रब इट ओवर द रबिंग पैड, है ना, तो वहां पे लाइट जनरेट होती है, राइट। दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, वो आप स्टडी करोगे आगे। मैम किससे? सॉरी बेटा? मैम किससे लाइट जनरेट होगी? मैस्टिक बॉक्स एंड योर मैस्टिक हेड, जब आप उसको रब करते हो रबिंग पैड पे, रबिंग पैड यानी मैस्टिक के जो बॉक्स के बाजू में हमें एक पैड दिया जाता है, राइट, वहीं पे हम रब करते हैं हमेशा, ठीक है, तभी वो जल्दी। किसी भी जगह पे आप करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो फायर कैच करता है। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। कलर चेंज हो जाएगा किसी, सपोज ब्रेड या रोटी का, है ना, 3 दिन ऐसे कंडीशन में 3 दिन रोटी रखो, आज बनाई और 3 दिन के बाद वो रोटी को देखना उसके ऊपर ब्लूइश ग्रेइश ऐसे पैचेस आ जाएंगे, वो क्या है? फंजाई, उसने अपने खाने को खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर चेंज इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, ओके। फायर, अब फायर ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपके पास वुडन लॉग है या फिर ब्रांचेस है, ठीक है, अगर आप उसको जलाओगे तो वो किसमें कन्वर्ट होने वाला है? इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऐश। बट ऐश कैन नॉट, वी कैन नॉट ब्रिंग बैक द वुडन लॉग्स फ्रॉम द एशेस, राइट? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज फिजिकल चेंज, यानी यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, कौन सा? ऐश, राइट। सेकेंड फिजिकल चेंजेस बहुत ही सिंपल है, एक बड़ा सा पेपर है, मन किया टुकड़ों में, टुकड़े करने के बाद क्या फिर से उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, सेलोटेप से बिल्कुल कर सकते हैं, बट ओरिजिनल फॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। पॉइंट क्या है यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है कि ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो या नहीं, यहाँ पे पॉइंट ये है कि अभी भी जो टुकड़े हैं पेपर्स के और आपका जो मेन पेपर था पहले, ठीक है, होल इंटैक्ट, वो भी किससे बना था? वुड पल्प, सेल्यूलोज से बना था और अभी भी वो उसी से बना है। उसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ उसका शेप हुआ है, राइट। या फिर उसकी साइज चेंज हुई है, यानी अगर रोप लंबा सा था उसको काट के आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो वहां पे साइज चेंज हो रही है। आइस क्यूब को आपने मेल्ट कर दिया तो स्टेट चेंज हो रहा है, सिर्फ सॉलिड में से लिक्विड हो रहा है, बट फिर भी को बना तो किससे? H2O से ही बना है। पिक्चर, यानी आपके पास अलग अलग कलर की जेम्स है, येलो, ग्रीन और बहुत सारी, उसको आप सेपरेट कर सकते हो आराम से, पर फिर भी वो बनी तो सेम ही कंपोजिशन से है, राइट? Yes, ma'am. ये हो गए एग्जांपल्स फिजिकल चेंज, जैसे नींबू को काटना, राइट। स्लाइसेस, इफ यू आर गोइंग टू स्लाइस दैट लेमन्स और द लेमन स्लाइसेस और वुडन लॉग, दिस इज द एग्जांपल। Now we are having introduction is done, beta. Is it clear why we are going to study this chapter, beta? Yes, ma'am. We are going to divide our, yes beta.
Now we are going to divide our chapter mainly into these two portions only, physical and chemical changes. Okay, but we need to understand before that what's the meaning of matter. Matter can be anything. It can be your handkerchief, it can be your video game, it can be your earphone, it can be you, your nail, your eyes, anything present on this planet which is having a specific weight or it's going to occupy some space. है ना? अगर आप अभी रूम में बैठे हो तो आप रूम के अंदर थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो और आपके पास खुद का अपना एक वेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपको हम क्या बोलेंगे, मैटर. ठीक है. कंपास बॉक्स के अंदर अगर राउंडर पड़ा है तो वो राउंडर वो कंपास बॉक्स के अंदर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इट्स हैविंग सम मास और वेट, राइट. सो व्हाट इज दैट, मैटर. ओके, अभी के लिए सिर्फ उतना समझो. देन वी आर हैविंग, अच्छा, केमिकल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फाइन, और फिजिकल चेंजेस के भी. मेल्टिंग ऑफ आइस हमने देख लिया, बट अगर वुडन लॉग, ठीक है, वुडन लॉग को हम कट करते हैं छोटे छोटे चंक्स में, पीसेस में, तो वो फिजिकल चेंज है क्योंकि वो अभी बना तो वुड से ही है, राइट. मार्बल्स है, अगर ग्रीन मार्बल्स को सेपरेट कर लो व्हाइट से, ग्रे से, जो भी कलर है, तो दैट इज फिजिकल चेंज. पेपर को श्रेड करना, ये जो मशीन है वो श्रेडिंग मशीन है. श्रेडिंग यानी क्या, बड़े पेपर को हमें छोटे छोटे उसके पीसेस में कट करना है, राइट. और केमिकल चेंजेस में बनानास, अगर मार्केट से आज हम बहुत ही मस्त येलो कलर के बनानास लेके आए हैं, 3 या 4 दिन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, एटमोस्फेयर में क्या कंडीशन है, ठीक है, थोड़े दिन में उसके ऊपर हमें ब्राउन कलर के पैचेस दिखेंगे, है ना, स्पॉट्स दिखेंगे. व्हाट इज दैट, केमिकल चेंज. क्यों, बनाना ने डीके करना, है ना, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया. डिकम्पोज यानी डिग्रेड होना, या डीके करना यानी क्या, आपने उसको उसके प्राण से कब का कट कर दिया है, यानी उसको वो कब तक जिंदा रहेगा बेटा, जब तक उसके अंदर वो वाटर सप्लाई, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स है, तब तक इट विल, है ना, आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट डीकेइंग, फाइन. अगर विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ, ये सबसे फेमस वाला एक्सपेरिमेंट है, मेंटोस को कोको कोला के साथ मिक्स करना है ना, केमिकल चेंज. हमें क्या दिखता है, पॉपअप साउंड, और बहुत ही अच्छे से उसके अंदर क्या रिलीज होता है, वो फज, फीज जैसा साउंड, राइट, फिजी. फायरवर्क्स, ये पता ही है आपको, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स में आपको फायर क्रैकर्स ले सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस दे आर गोइंग टू कैच द फायर. ओके, दिस आर द एग्जांपल्स, few more examples regarding physical and chemical changes that you can go through with. अच्छा, यहाँ पे एक सब्लिमेशन वाला ऑप्शन है. सब्लिमेशन यानी अगर कोई चीज सॉलिड में से सीधी गैसेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट टेकिंग दैट फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं. ये चेंजेस भी आप स्टडी करोगे, ये पहला स्टेप है चेंजेस को स्टडी करने का. 9th और 10th में आगे और भी आएंगे, सब्लिमेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, वो सारे, ठीक है. अच्छा, बॉइलिंग ऑफ वाटर को किस में काउंट करोगे बेटा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, गैसियस, इवेपोरेशन. मिक्सिंग सैंड विद वाटर, अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स कर रहे हो, अगर उसको आप सनलाइट में रखोगे तो फिर से वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, है ना. यही रीजन है कि कोई भी कोस्टल बीच रीजन में यू विल फाइंड कि जब वो पानी, ठीक है, वो पूरी लहरें सैंड में जाती है, फिर से वो वापस आती है, विद इन फ्यू मिनट्स और आवर्स यू विल सी दैट कि वो पूरी सैंड एकदम ड्राई आउट हो जाती है बेटा. क्यों, क्योंकि वो इजिली इवेपोरेट हो जाएगी, फाइन. सो दिस आर द एग्जांपल्स. नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल. अच्छा, हाँ, ये चेंजेस हम ला कैसे सकते हैं, फाइन. अगर फिजिकल चेंज लाना है तो हम कोई चीज कट करेंगे तो उसके शेप में वेरिएशन आ जाएगा, या टीयर, टीयर यानी फाड़ना, फोल्ड कर लेंगे, तो जो पहले बड़ा सा पेपर था वो अभी कैसे हो गया छोटा, तो वो फिजिकल चेंज हो गया. रिटन ऑन, इसके ऊपर कुछ लिख लिया हमने, जैसे कि कार्विंग कर लिया वुडन कोई चीज के ऊपर, वो फिजिकल चेंज हुआ. पेंट किया, कलर चेंज कर दिया, राइट. ये सारे कैसे एग्जाम्पल है, हम कैसे कोई फिजिकल चेंज ला सकते हैं उसके, ठीक है. केमिकल चेंजेस में आप थोड़े से एग्जांपल ऐसे देखेंगे. आवर बॉडी इज फुल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न दिस चैप्टर, है ना. हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, यहाँ बैठे बैठे हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है ना, बट स्टिल वी आर लाइक, वी नो अवर बॉडी, वी नो आवरसेल्फ, राइट. सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन ऑटो पायलट मोड पे, ठीक है. यहाँ पे बैठे बहुत सारी चीजें ऑटो पायलट मोड पे हो रही है ऑलरेडी, बट वी आर कॉन्शियसली नॉट अवेयर अबाउट दोस थिंग्स. ओके,
we are keeping that apart. We will discuss that in next session, next chapter. Fine, कोई एक सेशन में उसको डिस्कस करेंगे. But right now, iron rusting. This is the best season for rusting, है ना? Rusting की season है, काट लगना, जंग लगना. What is that? Rusting means that is only we are going to see in case of iron and some of the other metals. It's going to react with like copper with atmospheric oxygen and is going to form the residues of oxides. Residues यानी क्या? अगर मिल्क के अंदर गलती से लेमन डाल दिया तो वो मिल्क रेसिड्यूज मिलेगी अब, जिससे हम पनीर बना लेते हैं, चीज बना लेते हैं. यहाँ पे क्या होगा? If oxygen is going to react with the iron in the presence of water, क्योंकि मॉनसून में एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और मॉइस्चर का मतलब होता है पानी. ठीक है, इज गोइंग टू फॉर्म दिस रस्टिंग. तो यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कौन सा? रस्ट, राइट? योर वाटर, योर oxygen and your iron, three of them, they are going to react with each other and will form new substance, that is rust. That's why it's chemical change. Metabolism. कौन बताएगा metabolism मुझे? मैम कहना है. Yes. Method by which our body converts food and drink into energy. Perfect. Okay. हम ऐड तो क्या करते हैं? बड़ी साइज में चपाती. बट क्या हमारे माइक्रोस्कोपिक सेल इतनी बड़ी साइज की चपाती को अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो वी आर चूइंग इट, वी आर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड जनरेटिंग एनर्जी. तो हमने खाया क्या था और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में वो मिल क्या रहा है, एट द एंड क्या मिल रहा है, राइट? दैट इज कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, राइट? whatever idli, whatever dosa, whatever chapati, whatever you are going to eat, within few hours it's going to become your body, है ना? जितना भी खाना गया है उसी से हमारी बॉडी right now it's there, right? What we are, the food we are eating. जितने बर्गर्स, जितने पिज्जा, जितने चीज खाओगे वैसे ही बर्गर पिज्जा की तरह बॉडी बनेगी, है ना? If you are going to balance diet, you know that what is it, right? In 7th standard we already studied. Cooking an egg, yes, already देख लिया. Baking cake, yeast is going to utilize your dough. Electroplating हम study करेंगे. What is that plating? Electroplating means with the help of electricity we are going to coat one metal. जैसे आपके mother, she is going to coat that jewelry, है ना? जो pure form में silver होता है, is going to convert into black color. Why? Because it's going to react with the atmosphere and some other factors. So we are going to go for that polishing. Okay? Electroplating will see. Rotting हमने देख लिया. Vinegar, fireworks and chemical battery. Chemical batteries के बारे में तो पता ही है आपको. हम यूज करते हैं सेल्स अलग अलग टाइप के. ओके ध्वनित अभी शेयर करें बेटा आप. Okay, now this we have seen the types of changes. Now we will see that reversible and irreversible changes. Reversible क्या होते हैं और irreversible क्या होते हैं? Reverse यानी फिर से U डाल लेना, फिर से वही फॉर्म में कन्वर्ट होना. Irreversible यानी once they will take that form, we cannot bring back that original form, right? और एक word soluble, insoluble. Insoluble means अगर पानी के अंदर सैंड डाल दी तो सैंड क्या मिक्सअप हो जाएगी? पानी के अंदर नहीं. But if you are going to add inside that milk sugar, तो sugar उसके अंदर dissolve हो जाएगी. That is dissolution. Okay. चलो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो मैम. Sure. नो मैम. मैम रिवर्सेबल चेंज होगा उसमें फिजिकल आएगा ना? हो सकते हैं, हाँ. मैम वो सम का वीडियो नहीं देखना. सॉरी बेटा, वो सम का वीडियो नहीं देखना. एक मिनट मुझे ये कंप्लीट कर लेते दो, ठीक है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यानी जो फिर से रिवर्स नहीं कर सकते. हमने ऐसी गाड़ी इन्वेंट की है कि हम रिवर्स में नहीं जा सकते, ठीक है? ये कुछ ऐसा है जैसे हमने देखा वुडन लॉक्स को आप बर्न कर लोगे, एशिस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद हम उसको वापस नहीं ला सकते लॉक्स को. वो भी इरिवर्सिबल चेंज हो गया. इरिवर्सिबल जनरली कैसा होगा? केमिकल चेंज होगा. रिवर्सिबल चेंज जनरली कैसा होगा? फिजिकल चेंज होगा, राइट? हाँ बेटा बोलो, आपका क्या क्वेश्चन था? हेलो. Yes, ma'am. Yes beta, do you have any question? No, ma'am. नो मैम. Okay, now we are having one example, one experiment that is important, है ना? जो भी पेपर बनाते हैं ना उनको बड़ा मजा आता है ये पूछने में, हर बार पूछ लेते हैं, ठीक है?
तो क्वेश्चन के बेस पे नहीं जाएंगे, हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन, पहले ये देखेंगे. इट्स वन टाइप ऑफ और वन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. ओके, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट. हमारे पास कितना टाइम है? ओके, वी आर हैविंग 15 minutes for it. मैम 1 minute. Sorry, 1 minute is no, 15 minutes is left. Hey! Oh no! Okay, while you are performing any experiment, you need to wear those glasses. You need to be ready with all the equipments, tools, apron, everything, right? You're wearing proper those aprons, right? You've seen with aluminium, right? Aluminium foil, that is one type of metal. Likewise, we are having magnesium. Okay, this magnesium ribbon we are going to use here for the experiment. So it's basically tongs means we are going to hold our magnesium ribbon. हाथों से नहीं कर सकते, right? Just like we are using those tongs in our kitchen to hold the hot pans, right? So here also we are going to use. There are different types of tools or apparatus we are using for to perform the experiments. Hey. Huh?
first we need to understand that chemical change, what is going on. Okay, so we'll see that we are going to burn it with the help of burner, and we'll see the color. You see that this ribbon will form bright light. Okay, bright white light. We are not going to get the same result while we are burning any other metals or substance. That we are going to see in case of only magnesium ribbon, that white light formation. Okay, that's why we are right now doing that experiment by reducing the light. Okay, so that we can see the white light there. This is a special characteristic of the magnesium ribbon. And if light is forming or light is producing, you know that what are the characteristics or signs we can say is the chemical change. कौन से साइंस पर से हम बता सकते हैं कि ये साइन केमिकल चेंज की है, तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, राइट? लाइक थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के टाइम पे भी लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड भी, राइट? सो देयर वी कैन से द लाइटनिंग इज द केमिकल चेंज. Produced before we were using that specific type of typical that yellow color bulb, है ना, उससे गर्मी ज्यादा लगती थी, but right now we are using the CFL and all the other tubes. Okay, so it's not producing that much amount of heat, it's not going to raise the temperature of your room. Similarly here also, if you are going to burn the magnesium ribbon, it's going to produce the heat. So that is also one of the sign that this is the chemical reaction, and magnesium ribbon will convert it into, here we can see just like paper into ash. We should not look at the burning magnesium ribbon with the help of our eyes. Okay, why? Because it can cause damage to our eyes. Temporary brightness or lose of the sight. Temporarily you cannot see something, but after you oxygen is present already in the air. This oxygen is going to react with the magnesium. Okay, while you are going to burning, it's going to show you that white light. Yes, beta, it's cartoon only, so that you will get understand. You will get it easily. वो cartoon ही है. आपको कौन सा form चाहिए बेटा? पाउडरी ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे मैग्नीशियम रिबन जब पूरा जल जाएगा. ओके, और उसको क्या बुलाएंगे? बिकॉज ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद द मैग्नीशियम, सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम. नाउ वी कैन से इट्स द न्यू सब्सटेंस. नाउ इट्स नॉट एनी मोर आवर मैग्नीशियम, दैट इज केमिकल. मैग्नीशियम is going to react with oxygen and it will form magnesium oxide. This is the form of chemical reaction. ये केमिकल इक्वेशन है, जैसे हम मैथ्स में वैल्यूज को लेके करते हैं, राइट? तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या बेटा? Mg, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. अब ये 2 क्या है? ठीक है, वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन ऑलवेज. राइट नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड एक्जेक्टली व्हाट इज इट, बट यस केमिकली इट शुड बी बैलेंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड पे 1, वरना वो रिएक्शन केमिकली बैलेंस नहीं है, ऐसा बोला जाएगा. Handle with care whatever you are performing in that experiment. Is it clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. So now I am having one question for you. Fine. This is the experimental form that we are going to burn the magnesium ribbon and it will get converted into that magnesium oxides. Okay. This is the experimental way. If you want to draw, completely fine. Now we are having another example. Copper surface solution, but today we are not going to take, है ना? But आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. Fine. I am having one example today to
learn, that is one homework actually, one homework I'm having. Fine, but you can continue that. Find out more chemical changes and physical changes around yourself. आपको लिस्ट बना के लाना है 5 जो हमने डिस्कस ना किए हो बस, ठीक है? दैट इज योर होमवर्क. लिस्ट बना के लाओ सेशन में. और एक चीज. ओके. Yes, ma'am. Do you need any help for the simulation? और भी ऐसी कोई चीजें हो जो आपके ध्यान में ना हो और आप ज्यादा जानना चाहो उसके बारे में, ये सबके लिए, ठीक है? तीसरे देखा इसलिए मैं पर्टिकुलरली उससे स्टार्ट कर रही हूँ. Do you want such type of simulations, Beta? Do you aware about those type of simulations? Do you want more simulations that you are not aware about it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. What else you want, Beta? कोई भी पढ़ाई, सपोज साइंस को लेकर, अगर उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना हो, आपको कौन से तरीके से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना आपको? Ma'am, by seeing the cartoon and simulators. Yes, ma'am. Virtual study. Yes, Beta? Virtual study. Experiment. Okay, then. अच्छा, वीडियो मैम बट मुझे तो ये फाइंड आउट करना आ गया है. मैम आई ऑल्सो नो. ओके, तो आपको आगे हेल्प की जरूरत नहीं है, राइट? नो. मतलब 11 मैम आप भेजो ना, हमें चाहिए, हमें ढूंढना नहीं आता. पर हमें सिंपल जो टॉपिक हमें चाहिए उसका नाम लिखना है गूगल में और फिर उसके पीछे सिमुलेशन टाइप करना है और कुछ नहीं. सिंपल है. मैंने ट्राई किया, ग्रेड था, 7 नहीं भी हो रहा. मेंशन करना है. आपने ट्राई किया पर नहीं हो रहा. और कौन बताएगा बेटा? मुझे मैम आई हैड आल्सो ट्राई. हाँ, तो आप खुद से कर सकते हो सर्च. यस मैम. सर्च कर सकते हो, बट उसके बाद जब उसको ट्राई करना है, राइट? उसको समझना है. So is it okay for you to understand that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मेरे को भी आ गया मैम. मैम मैंने लिंक भेजी आपको. Yes, yes, fine. मैम मैंने भी भेजी थी मैम. ठीक है. मैम एक बार फिर. So you don't need any help for the simulation, right? No, ma'am. No, ma'am. Okay, great. So regularly you are checking all the simulations, topic wise or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और चीज, हम जो नॉर्मली हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं ना, वर्कशीट वगैरह लिखते हैं, राइट? ऑनेस्टली कितने लोगों को वो वर्कशीट, क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल एक्सरसाइज लिखना अच्छा लगता है? मैम आई. मैम मुझे भी. क्वेश्चन आंसर सीधा जो हम लिखते हैं, है ना, जो हमारा एक फॉर्म है फॉर्मल, हाँ, अच्छा लगता है. ठीक है. यू डोंट वांट एनी अनदर वे to write down that. आपको कोई नई चीज नहीं चाहिए उसमें, right? You're okay with whatever is that. Yes, बेटा. मैम वो नई चीज दिखाओ ना मैम. Sorry? उससे भी ज्यादा. मैं आपने कहा ना कि क्वेश्चन आंसर्स में कोई नई चीज नहीं. That's what I'm asking. I'm just doing that survey only. क्या आप किसके साथ ओके हो? अगर आप उसके साथ ओके हो तो I'm not going to work on it, है ना? जैसे आपने बताया कि simulations हम खुद से कर लेंगे. So I was working on it, right? But right now you are ready for that. You don't need any help. So I'm मैम अब वर्कशीट से रखो, हमें उसमें पूरी डिटेल के साथ सब कुछ मिल जाए. बेटा वहाँ पे सिर्फ वर्ड्स होते हैं. जब आप सिमुलेशन या कोई चीज प्रैक्टिकली करते हो उस टाइम पे आप प्रैक्टिकली वहाँ पे इन्वॉल्व होते हो, है ना? अगर वो वीडियो गेम खेल रहे हो जिसमें आप गाड़ी चला रहे हो, यू कैन सी दैट यू आर द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार. अब अगर आप ड्राइविंग की बुक लेके बैठोगे, सो डू यू थिंक सो कि उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो पाएगा? नो मैम. नो मैम. नो मैम. यूजुअली मिलता है. नो मैम. मैम हाँ बोलो बेटा. मैम आप जब नेक्स्ट टाइम किसी भी सब्जेक्ट की वर्कशीट बनाओ तो फिर उसके नीचे ना एक सिमुलेशन की लिंक दे देने की. But you don't want that, no बेटा. You don't want, no. मैम अगर किसी को चाहिए तो चैप्टर के अंदर कितने सारे टॉपिक्स होते हैं. यस मैम. और फिर आप जब एक ही बार में एक ही लिंक दोगे ना तो आपको उतना फाइंड भी नहीं करना पड़ेगा सारा टॉपिक का. मुझे फाइंड नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को फाइंड नहीं करना पड़ेगा. मैम मतलब आपको आप अभी बनाओगे तो पहले ये टॉपिक उसके That's what I'm saying बेटा कि you don't need to share it or further I'm not going to prepare it, है ना? वो काम वहीं पे छोड़ देंगे उसको पूरा. Because you can do it on your own. दूसरा ऑप्शन है. Sorry बेटा.
मैम वर्कशीट के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ है ना, बहुत सारे 2-3 ऑप्शंस है। मैम તમે કહો कहो ना मैम। उसके लिए ना थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके पीछे, बट हाँ उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, कुछ मॉकअप करने की जरूरत नहीं होगी। मैम आप एक बार बताओ। यस नो मैम, बताया था अगर याद हो तो, लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा। नो मैम, एक तो फिर से बता दो। नो मैम, मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कि बताया था। लैप बुक जैसा कुछ होता है, लैप बुक, याद आया? यस लैप मैम, बुक होता है, मॉडल प्रिपरेशन, हाँ दिया, याद आया बेटा अभी? यस मैम, हाँ मॉडल प्रिपरेशन भी होता है। किसी भी चैप्टर को ऐसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जहाँ पे सिर्फ थियरीज ना हो, ठीक है, थियरी नहीं पढ़नी पड़े आपको। ओके, तो तरीके तो बहुत सारे हैं, बस आप इंटरेस्टेड होने चाहिए तो मैं आपके सामने रखती हूँ। मैम आप भेजना है। यस मैम, पर ये मैम सब होगा आधे पर अगर सिम्बल्स एक के टाइम अंदर पे ये हमें सब जैसे कवर ये हो बोलना जाता हो है। तो एक कोई एक बोलो। मैम अगले लेक्चर में दिखाना मैम वो क्या? अरे लैप्स मैम वाला। वो आधे सिम्बल्स के अंदर कवर हो जाता है। ओके, फिर मैम आप जो है अगर कभी जो आपको मतलब जो चाहिए बनाने के लिए वो ना हो तो, जैसे कि हम जैसे कि आपने जो अभी कौन सी रिबन बोली थी, लैप अगर बुक, वो हमारे पास नहीं है तो फिर हाँ वो नहीं है जो है उससे भी बना सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है बिल्कुल। ओके ठीक है, चलो यहाँ अगले तक लेक्चर करते हैं। हाँ बेटा, अब यस बोलो बुक बोलो। वाला मैम, वो बुक वाला अगले लेक्चर में एक बार दिखाना मैम, स्क्रीन शेयर करके मैम। अभी नहीं बेटा, नेक्स्ट सेशन, ठीक है? मैम वही नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ठीक है। मैम वो एक है लैबेस्टर जैसा भी कोई ऐप आता है, सॉरी, लैबेस्टर करके भी कोई ऐप आता है। एप्लीकेशंस भी बहुत है, यस बट मैम, अगर मुझे आप पता है। बेटा ढूंढ ही सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। यू डोंट नीड योर टीचर, दैट्स अ परफेक्ट थिंग। बस ये लेवल पे पहुंचना था जो हम आज पहुंच गए, ठीक है? यू कैन सर्च ऑल दोस थिंग्स ऑन योर ओन, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। बट इफ यू वांट मी वंस अगेन, स्टिल इफ यू वांट, एक जगह पे कंपाइलेशन चाहिए आपको सभी चीजों का। सपोज अगर फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हो, तो उसके रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी चीजें हैं वो गेदर करके चाहिए, तो दैट आई कैन गिव। फाइन, यस मैम, तीर्थ आप डिसाइड करो यस और नो। चलो यहाँ पे करते हैं बेटा, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। फाइन, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू। ओके मैम, बाय मैम। बाय मैम।